السلام علیکم۔ تو آج تو ہم عربی میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دو تین چیزیں ہیں جو آج کی ویڈیو میں اور آج کی کلاس میں اپن پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک ہے گردان۔ گردان ہے تاکہ ہمیں صیغے پتہ چلے، ماضی، مضارع، امر کے، اسی طرح نہیں کے۔ اور دوسرا ہے کسی بھی چیز کو اگر ہم پوائنٹ کر کے بات کریں گے اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ۔ جیسے اسم اشارہ میں نمبر 1 پر ہے ہاذا۔ کیا آئیں گا؟ ہاذا، یہ زا، ہاذا، ہاذا یعنی یہ۔ ہاذا کے معنی یہ۔ دیس، دیس بھی بول سکتے ہیں، دیس بھی، دیس ہی بولیں گے اس کو۔ ہاذا کتابن، کتابن یہ مکمل خبر ہوئی، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ ہاذا کتابن، ہاذا قلمن، ہاذا کرسیٌ۔ ہاں سمجھ میں آ رہا؟ ہذہ قلنسوۃ۔ قلنسوۃ ٹوپی کے لیے کیوں آئے گا؟ کیونکہ اس میں مؤنث کی علامت پائی جاتی، تو یہ یوز ہوتا ہے میل کے لیے۔ کس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ؟ مردوں کے لیے۔ اب کوئی ایسی چیز آ گئی جو جس میں گولتا ہو ایسی، تو اس میں ہاذا کا یوز نہیں ہوگا بلکہ اس میں ہذہ کا آئے گا۔ ہذہ، سمجھ میں آیا؟ ہاذا، ہذہ۔ اس کے بعد ذالک، ذالک، تلک، تلک۔ اب تلک یہ مؤنث کے لیے یوز ہوگا، ذالک مذکر کے لیے۔ مؤنث اور مذکر کا مطلب یہ ہے، مؤنث کہتے ہیں مرد کو، مذکر کہتے ہیں مرد کو، اور مؤنث کہتے ہیں عورتوں کو۔ جو صیغے عورتوں کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مؤنث کا صیغہ، جو مرد کے لیے یوز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مذکر کا صیغہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ تو یہ مذکر اور مؤنث اس طرح سے ہیں۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، یا پھر ذالک القلم، وہ قلم۔ اب تلک الحقیبۃ، وہ بیگ۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ ذالک الولد، وہ لڑکا۔ ذالک الفصل، وہ کلاس۔ ہاں، تلک کا یوز مؤنث کے لیے ہوگا۔ اگر کوئی مؤنث کا صیغہ ہے جیسے حقیبۃ، بیگ، اس کو کیا کہیں گے؟ مؤنث کے لیے تلک الحقیبۃ۔ ذالک الحقیبۃ نہیں بول سکتے، اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ تلک، تلک الحقیبۃ، وہ بیگ۔ تلک الحدیقۃ، وہ باغیچہ۔ ہاں، حدیقہ باغیچہ، حقیبۃ بیگ، یہ استعمال ہوتا ہے سادہ۔ ہاذا کتاب، ہاذا کا استعمال کیوں ہوگا؟ دس، اور ذالک دیٹ۔ ذالک کس کے لیے ہوگا؟ دیٹ کے لیے، دیٹ کے لیے، اور ہاذا دس کے لیے استعمال ہوگا۔ اور اسی طرح تلک اور ہذہ یہ بھی بتا دیا میں نے۔ اب میں یہ کہوں گا ہاذا، ہاذا قلم، کیا ہوا؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ قلم ہے، یہ قلم ہے، پوری بات، جملے خبریہ، مبتدا اور خبر۔ ہاذا مبتدا، قلم خبر، یعنی جب بھی بات کرنے والا پوری بات کہے تو اس کو کہتے ہیں جملے خبریہ۔ کیا کہیں گے اس کو؟ یعنی سننے والے کو ایک خبر کا پتہ چلے، جیسے یہ پین ہے، یہ ٹرین ہے۔ ہاذا قطار، قطار کسے کہتے ہیں؟ ٹرین کو۔ ہذہ سیارۃ، یہ کار ہے۔ ہذہ حافلۃ، یہ بس ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حافلۃ کہتے ہیں بس کو، سیارۃ کہتے ہیں کار کو، اور قطار کہتے ہیں ٹرین کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ اب اس ہاذا کے کم سے کم 10 مثالیں بنا کے لے کے آنے کا کل۔ ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ ہاذا بیت، یہ گھر ہے۔ ہاذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ اور وہیں پر بنتن آیا۔ بنتن کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟
تو اب آپ हादा नहीं बोल सकते, अब आपको बोलना पड़ेगा हाजिही। तो अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो हाजिही, और दैट के लिए यूज हो रहा है तो तिलका, तिलका बिंतुन वो लड़की है, हाजिही बिंतुन ये लड़की है। समझ में आया? हाजा और तिलक में फर्क समझ में आया? तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब किसी चीज को खास करना है उसको कहते हैं मारफा। क्या कहते हैं उसको? मारफा। यानी कलमुन, कोई भी कलम, कलमुन, मैं कलम की मिसाल दे रहा हूं। कलमुन के मतलब कोई भी कलम, लेकिन अल कलमु, अल कलमु, इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है लिखने के हिसाब से? शुरू में अलिफ लाम लग रहा हाँ, और एंडिंग में दो पेश नहीं लग रही। वेरी गुड। एंडिंग में दो पेश आना ये नकेरा की अलामत है। किसकी अलामत है? नकेरा ऐसा इस्म जो हर एक चीज को बताने के लिए आए। जैसे कि कलमुन, कोई भी पेन, हर चीज में कोई भी, कुर्सीयुन, कोई भी कुर्सी, कुर्सीयुन में कोई भी कुर्सी, हाँ। लेकिन अल कलमु यही पेन, अल कलमु, अल कलमु ली ये मेरा पेन है, मेरा पेन है। कलमुन ली कोई भी पेन मेरा है, इस तरह से। लेकिन अल कलमु यही पेन किसका है? मेरा है, अगर मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो कलमुन कोई भी पेन, अल कलमु मखसूस पेन जिसको हमने पिन किया हो, यही पेन। ओके, अल कलम। और अलिफ लाम आने के बाद ये भी समझना जरूरी है, अलिफ लाम आने के बाद तनवीन नहीं आती। अलिफ लाम आने के बाद ना दो जबर की आएगी, ना दो जेर की आएगी, ना दो पेश की आएगी। समझ में आ रहा है? अलिफ लाम आने के बाद तनवीन नहीं आती। इसी तरह हमने आज हाजा पढ़ा, हाजिही पढ़ा, तिल्क पढ़ा, जाली का पढ़ा और नकेरा और मारफा पढ़ा। समझ में आ रहा है? किसी चीज को खास करना है तो मारफा होगा। जैसे हाजल कलम, हाजल कलम, हाजल कलम, इसका माना होता है ये पेन। ये पेन है नहीं, ये पेन क्या होगा? ये पेन। लेकिन अगर हम इसको एक खबर में तब्दील करना चाहते हैं तो बनेगा हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, कलमुन ये पेन है। समझ में आ रहा है? ज़ालिकल वलदु वो लड़का, वो लड़का, ज़ालिका वलदुन वो लड़का है, यानी कन्फर्म खबर। ज़ालिकल वलदु वो लड़का, सिर्फ इतनी इसका तर्जमा। ज़ालिकल वलदु सालिहुन वो लड़का नेक है। वो लड़का क्या है? अब क्योंकि ज़ालिकल वलदु आया, वो लड़का, अब क्या है वो लड़का? क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। ज़ालिकल वलदु सालिहुन लड़का कैसा है? नेक है। ज़ालिकर रजुलु मुहंदिसुन वो आदमी इंजीनियर है। ज़ालिकर रजुलु तबीबुन वो आदमी डॉक्टर है। समझ में आ रहा है? ज़ालिकल वलदु खबीसुन वो लड़का बुरा है। समझ में आ रहा है? क्या खबीसुन मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी गाली नहीं है, उसका मतलब होता है बुरा। उसका मतलब क्या होता है? बुरा। समझ में आ रहा है? तो हाजा, तिलका, ज़ालिका, समझ में आ रहा है? तो ये समझना जरूरी है। अब इसके आगे हालांकि कई हफ्तों तक एक ही क्लास चलती रहती है, हाजा हादिही। क्यों? समझाने के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि अगर रफ्तार से आगे बढ़ेंगे तो ऐन मुमकिन है कि कोई चीज छूट जाए, ऐन मुमकिन है कि कोई चीज छूट जाए। अब मैं एक जुमला कहूंगा आपसे, उसको अरबी में बनाना है। जुनेद नेक है, कैसे बनोगे? आधा क्यों ला रहा? मैंने कहा कि ये जुनेद नहीं, जुनेद नेक है। एक ही जुनेद है, जुनेदुन सालिहुन, जुनेद, हाँ जुनेद नेक है। मैं कहूंगा अरमान बुरा है,
अरमान अरमान खबीस में। अरमान बुरा है। ओके, समझ में आ रहा है? इधर पेश क्यों नहीं लगा रहे नाम के? हाँ? नाम के पास पेश क्यों नहीं लगा रहे? कौन सा? पेश क्यों लगा रहे? दो पेश क्योंकि खबर दे रहे ना, पूरी पूरी खबर दे रहे, क्योंकि हादा जो है वो इसम में नहीं आता, इसमें इशारा है वो, यानी इशारा करने के लिए यूज होता है वो हादा, ये वो पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है। हाँ, हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजुन कलमुन क्यों नहीं बोलते? तो हाजा वैसे ही आता है हादा, जैसे कि दीज, हाँ उसका वही है। लेकिन जैदुन तबीबुन, जैद क्या है? डॉक्टर है। जैद क्या है? इंग्लिश में जैसा तर्जमा पीछे से होता ना, अरबी में पीछे से तर्जमा बहुत कम होता। जब बड़ा लाइन आएगा, बड़ा सेंटेंस आएगा तो तभी पीछे से होगा, लेकिन शुरू में छोटे छोटे जुमले जो आते हैं, जैसे कि उवैसुन तबीबुन, 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 उवैस क्या है? डॉक्टर है। उवैस डॉक्टर है। इसके लिए है के लिए जो हिंदी में है ना, ऐसा है उर्दू में, या फिर ये है, या इंग्लिश में इज। समझ में आ रहा है? इनका इस्तेमाल अरबी में ये काम करेंगे। दो पेश, दो पेश, हाँ, दो जबर, जहां पर जाकर मामला निपट रहा है। जैसे मैंने बताया था, ज़रबतु ज़ैदन शदीदन, मैंने जैद को बहुत बुरी तरह मारा। हाँ, ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद को क्या करा? मारा। अब तुझे बताता, मैंने जैद को बुरी तरह मारा। अब इसमें ज़रब के माने है मारना। ज़रब के माने क्या है? एक फेल है, वर्ब है, काम करना। जैसे ज़रब के माने मारना, लेकिन जैसे ही मैं इसको ता जोड़ दूंगा, ज़रबतु, ज़रबतु मैंने मारा, मैंने मारा। ज़रबत तूने मारा, तूने मारा। ज़रबत, ज़रबत उस एक औरत ने मारा। अब ये कब आएगा? जब तुम गर्दान आएगा, गर्दान समझेगा तो वो सारी चीजें तेरे समझ में आएंगे। ज़रबती रहेगा। हाँ, ज़रबती तू एक औरत ने मारा, मतलब वो औरत उसकी तरफ इशारा करेगी नहीं, या फिर सामने वाला उसको बोलेगा, या सामने वाला बोल रहा ना, जाहिर सी बात है। हाँ, अगर कोई लड़की बोल रही है खुद के बारे में, हाँ, कोई लड़की बोल रही है या फिर है, क्या बोल रही हो लड़की? जैसे मैंने मारा, हाँ, मैंने मारा तो उसकी तो उसके लिए आएंगे ज़रब तू। हाँ, क्योंकि मुतकल्लिम का सीगा दोनों के लिए बराबर था। वो नील का है ना, इंक का, वो लेकर खोल इसको। जज़ाकल्लाह, क्या कहेंगे? डायरेक्ट तो कैसे डालेंगे? अरे डायरेक्ट है रे, क्या था खोलने का विषय? देखा, मैं भूल गया। तो तेरे को अरबी लिखने आएगा ना? हाँ, तेरे को पहला देखिए, फ़अल, फ़अल, फ़अला, फ़अलू, ये तीन गायब मर्द के से उसमें चेहरे, या औरत के लिए तीन, ये मर्द के लिए तीन से गए। फ़अलत, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलता, फ़अलना, क्या है? फ़अलना, फ़अलना। ये तीन गायब मर्द के लिए, तीन गायब औरतों के लिए। अब हाजिर मर्द के लिए फाइल का मतलब है क्या? करना। फ़अलत मतलब वर्ब, वर्ब, ये ग्रामर का वर्ड है क्या? हाँ,
तूने की ग्रामर का हाँ फ़अलत तूने किया, फ़अलता तुम दोनों मर्दों ने किया ना, फ़अल तुम सारे मर्दों ने किया। बैठ हुआ क्या बस क्या हाँ ये रख दे बेटा ऐसे। कैसा बैठेंगे बेटा हाँ फ़अलता फ़अल तुम के माने तुम सारे मर्दों ने किया, यानी हाजिर है ये मर्द। फ़अलता तुमने किया, फ़अलता तुम दोनों ने किया, फ़अल तुम सारे ने किया। अब आएंगे फ़अलती तीन औरतों के लिए, हाजिर नहीं है औरतें हो, हाजिर है ये। फ़अलती फ़अलतुमा तुमा फ़अल तुन्ना फ़अल तू फ़अल दोनों हाजिर है, ये दोनों गायब है। और ये अभी फालती फ़अलना मुतकल्लिम है, मैं नहीं करा। ये तीन सेगे मर्द के लिए जो मर्द हाजिर नहीं है, ये तीन सेगे औरत के लिए जो हाजिर नहीं है, मौजूद नहीं है। ये तीन सेगे उन मर्दों के लिए जो हाजिर है। फ़अलता तूने किया, ये तीन औरत के लिए जो हाजिर है। एक फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हमने किया। बेटा अब यहाँ पे लिख रहा सेगे, तेरे को लिखना है वो। फ़अल तर्जमा होगा किया उस एक मर्द ने, किया पास्ट है, हाँ फ्यूचर का नहीं, ये फ्यूचर का नहीं पढ़ा रहे और ना ही प्रेजेंट का, पास्ट का। फ़अल किया उस एक मर्द ने, फ़अला 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 किया उन दोनों मर्दों ने, फ़अलू फ़अलू। जब जमा का सेगा आएगा तो वाव के बाद अलिफ आता, समझ में आ रहा है। फ़अलू किया उन सब मर्दों ने, मर्दों के लिए। अब औरत के लिए फ़अलत फ़अलत किया उस एक औरत ने। देख जज़म आया ता के ऊपर, ये बात याद रखनी चाहिए, जज़म आया और फ़अलत, क्योंकि इल्मे नहव की जो बहस है वो आखिर के एराब से है, यानी ज़बर ज़ेर पेश जज़म आखिर में क्या आता है उससे बहस है, क्योंकि उसी से सेगा बदलेगा। फ़अलता तूने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलती तू एक औरत ने किया जो मौजूद है सामने, लेकिन फ़अलत उस एक औरत ने किया। अब इसी से बना फ़अलता, तस्निया का सेगा। तस्निया कहते हैं दो को, फ़अलता। अब फ़अलना क्या बना, फ़अल
न, یہ عورت کے لیے جو کہ حاضر ہے کیا؟ یہ غائب مردوں کے لیے، غائب عورتوں کے لیے. حاضر کا یہاں پہ لکھ رہا ہوں ابھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ترجمہ وہ ہے کیا اس ایک مرد نے، کیا اس ایک مرد نے. فاعل کا ترجمہ کرنا. جب وہ فاعل کیا اس ایک مرد نے، فاعل کیا ان دو مردوں نے، فاعلو کیا ان سب مردوں نے، فاعلت کیا اس ایک عورت نے، فاعلتا کیا ان دو عورتوں نے، فاعلنا کیا ان ساری عورتوں نے. فعلنا رأیت فعلنا، میں نے دیکھا کیا ان ساری عورتوں نے. سمجھے کیا؟ نصرت فعلنا، میں نے مدد بھی کی ان ساری عورتوں نے کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب حاضر کے لیے، حاضر، حاضر مرد عورت کے لیے، حاضر مرد عورت کے لیے. فعلت، فعلت کیا آئیں گا؟ ایک بھی ورڈ سیم نہیں رہے گا، ایک بھی ورڈ سیم نہیں رہے گا. 14 پورے الگ الگ ہے. زبر الگ ہے، زیر الگ ہے، پیش الگ ہے. آخر کا صرف آخر سے لینا دینا آپ نے. آخر میں پہلے لام زبر، لام الف آیا، لام پیش آیا. فعل، فعلا، فعلو، فعلت جزم، فعلتا الف مدہ، فعلنا پھر نون زبر. فعلتا تو نے کیا، فعلتما، فعل کیا آئیں گا؟ فعلتما، تم دونوں نے کیا. حاضر کے لیے کا ہے دماغ، تم دونوں مردوں نے کیا. فعلتما، تم دونوں مردوں نے کیا. بعد الفجری، فعلتما بعد الفجری، تم دونوں مردوں نے فجر کے بعد کیا. سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اب مدد کی، جھگڑا کیا، وہ ساری چیزیں تم سینٹینس میں بنا سکتے ہو. فعلتما، فعلتم، فعل، فعلتم، فعلتم، تم. یہ حاضر کا ہے، حاضر مرد عورت کے لیے. یہ غائب، غائب. اوکے، آئی بات؟ سمجھ شریف میں بات آئی؟ کتنے ہوئے صیغے؟ ٹوٹل 14 ہے. 3 6 9. 3 6 کیا. کون سا پہلا؟ فعلتا، تو نے. ابھی میرا ذکر ہے ہی نہیں اس میں. فعلتا، فعلتا کے معنی ہوتے ہیں یہ تم نے کیا. نصرتا، تم نے مدد کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ضربتا، تم نے مارا. فتحتا، تم نے کھولا. سمجھنا؟ بلغتا، تم نے پہنچایا. وجدتا، تم نے پہنچایا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم نے پایا. فعلتی کیا آئے گا؟ فعلتی، فعلتی، تی، تی. تو ایک مرد نے کیا، تم ایک عورت نے کیا. اب یہ تسنیہ کا صیغہ دیکھ، تسنیہ کا صیغہ یعنی یہ دو کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ دونوں سیم رہیں گا. فعلتما، فعلتما. ایک بار تمہارا ہو گیا تو عربی کی ایک بک ہم شروع کر سکتے تاکہ آپ کو جب اس کے اندر صیغے پڑھائے جائے تو تکلیف نہ ہو. صیغے جب اس کے اندر پڑھائے جائے تو تکلیف نہ. فعلتما دونوں سیم ہے. کیا تم دونوں مردوں نے، کیا تم دونوں عورتوں نے. دونوں کے لیے سیم ورڈ یوز ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فعلتن، جیسے یہاں پہ فعلنا آیا وہاں پر یہ بھی تا ایکسٹرا آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے تا؟ کیونکہ تا کے اوپر ہے پورا. فعلتا، تو نے کیا. فعلتی، تو نے کیا. فعلتن، یہاں پہ فعلنا ہے. فعلتن، کیا تم ساری عورتوں نے، کیا تم ساری عورتوں نے. اب ہو گیا یہ حاضر کا مسئلہ حل. اب دو صیغے بچے. کتنا؟ 3 6 9 12. کون سا؟ مرد کے لیے اور عورت کے لیے. یہ فعلتما، یہ سیم ہے، یہ بھی سیم ہے. مؤنث کے دونوں صیغے یعنی تسنیہ کے لیے، یعنی دو عورتوں کے لیے بھی سیم ورڈ یوز ہوگا، دو مردوں کے لیے بھی سیم
वर्ड यूज होगा सिर्फ जमीर में, हाँ ग्रामर में यूज होगा, लेकिन जो दूसरे अलग अलग ग्रामर है, हादिही, हाँ हादाने, समझ में आ रहा है। और इसी तरह तिलका, रानिका, जालिका, उलाइका, हा उलाई, वो अलग अलग चीजें, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें जो मुखातब के सेगे हैं, जो सामने वाले के सेगे हैं, उनमें मुअन्नस मुज़क्कर सेम होगा। मुज़क्कर मर्दों को कहते हैं, मुअन्नस औरत को कहते हैं। कितने सेगे हुए? 12। एक सेगा अब जबर का हो गया, जेर का हो गया, कौन सा सेगा बाकी है अभी? देख कितना अच्छा समझा रहा मैं तेरे को। जज़म, जबर, जेर, फिर पेश, फ़अलतु। यानी तेरा पूरा लोड कम कर दिया। नसरा, नसरा, नसरु, नसरत जज़म, नसरता, नसरना। अब नसरत, नसरतुमा, नसरतुम। अब मुअन्नस कैसे होगा? नसरती, तूने मदद की। नसरतुमा, तुम दोनों औरतों ने मदद की। नसरतुन्ना, तुम सारी औरतों ने मदद की। अब जज़म का हो गया, जज़म का हो गया, जबर का हो गया, जेर का भी हो गया। अब बचा किसका? पेश का। फालतू, क्या हुआ? मैंने किया। फालतू, मैंने किया। कोई भी काम हो सकता है जो आपने किया, वो आप कह सकते हो फालतू। ओके, अब एक आ गया भाई, अब मेरा हो गया, अब बोलना है हमने किया, तो नहनु का यूज होगा क्या? नहनु का यूज दूसरी तरफ होगा, लेकिन यहां पर आएगा, ये जमीर है। ये क्या है? जमीर। क्यों है? क्योंकि एक्चुअल वर्ड है फ़अल। एक्चुअल वर्ड क्या है? फ़अल। अब फ़अल से बना वो ईट, ईटन जो है इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंग्लिश में ईट, ईट के फॉर्म जो निकलते हैं आखिर में, आगे उसका प्लूरल, सिंगुलर, पास्ट के लिए यूज होता, प्रेजेंट के लिए यूज होता, फ्यूचर के लिए यूज होता, 3 फॉर्म में यूज होता ना कोई भी। तो फ़अल था, उसने एक मर्द ने किया। अब हमको बोलना था 2 मर्दों ने किया, तो हमने कहा फ़अला। हाँ फ़अला। अब हमने कहा कि नहीं उन सारे मर्दों ने किया, तो मैंने कहा फ़अलू। तो क्या बना? फ़अल, फ़अला, फ़अलू। उसे एक मर्द ने किया, उन 2 मर्दों ने किया, उन दोनों औरतों ने किया ना, सब मर्दों ने किया। अब ये मर्दों का होगा। अब औरतों का, औरतों का जज़म के साथ लेंगे। जज़म के साथ औरतों का पहला है। तुम ये मत सोचना कि फ़अला ये मर्दों के लिए था, औरतों के लिए पहला क्या आएगा? फ़अलत। ये औरतों का वाहिद है। उसे एक औरत ने किया, अब अपने को 2 करने का था, फ़अलता। उन सारी औरतों ने किया, फ़अलना। फ़अल तुम नहीं आएगा, फ़अलना, फ़अलना। उन सारी औरतों ने किया। अब औरतों का हो गया। अब ये कहना है कि तुमने किया, फ़अलता। तुम दोनों ने किया, फ़अलतुमा। तुम सारों ने किया, फ़अलतुम। औरत है, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना। अब इसी तरह फ़अलतु, मैंने किया, फ़अलतु, मैंने किया। नसरतु, हाँ मैंने मदद की। ज़रबतु, मैंने मारा। अकलतु, मैंने खाया। बलगतु, मैंने पहुंचाया। हाँ, अब एक लास्ट, ये वाहिद का सेगा है। किसका बोलेंगे? ये वाहिद, यानी एक और मुतकल्लिम। इसको क्या कहेंगे? वाहिद। मुतकल्लिम कहते हैं बोलने वाले को। मुतकल्लिम किसे कहते हैं? अकेला बोलने वाला है। फालतू, मैंने किया। जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम किसे कहेंगे? एक से ज्यादा लोग। जब एक से ज्यादा लोग बोलेंगे तो क्या कहेंगे उसको? अब एक से ज्यादा लोग अपनी तरफ किसी बात को मंसूब करेंगे तो वो हो जाएगा जमा मुतकल्लिम। अब वो क्या रहेगा? फ़अलतु, ये है फ़अलना। क्या है? फ़अलना। फ़अलना के माने क्या हो जाएंगे? उन लोगों ने कहा। ये तो उनका तो पहले 6 में आ गया, तुम्हारा तो ये बाकी के 6 में आ गया। इसने कहा। किसने? सामने वाले का तो बाद में के 6 का है ना। फ़अल तो तूने किया। हाँ, उन सब ने तो ये है फ़अलू। उन सारी औरतों ने ये है फ़अलना।
तुम सब मर्दों ने किया, ये है फाल तुम सब औरतों ने किया, ये है फाल तुन्ना। उनका तुम्हारा हो गया, अब ये बचा फालतू के माने क्या है, मैंने किया, मैं अपनी तरफ ले रहा हूं अभी। और किसी काम को ऐसा कह रहा कि हमने किया, क्या होगा अब, फालना, क्या किया, हमने किया, मैं खुद भी इंक्लूड है उसके अंदर, समझ में आ रहा है, क्योंकि प्लूरल के अंदर खुद अपनी जात को आता सिंगुलर के, लेकिन प्लूरल जब बयान किया जाता जमा के साथ तो इंसान खुद ब खुद उसके अंदर शामिल होता। जैसे नसर तू, नसर मैंने मदद की, नसर ना चाहूंगा माना, हाँ हम सब ने मदद की। ज़रब तू, ज़रब तू क्या है, ज़रबना, ज़रबना, ज़रबना हम सब ने मारा। समझ में आया, ये सीगे लिखने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, तो उसके हिसाब से गाड़ी तेज रफ्तार भागेगी। और लिखना नहीं आया, पढ़ना नहीं आया, मेहनत नहीं की, तो फिर गाड़ी क्या है, रुक जाएंगी, गाड़ी क्या है, रुक जाएंगे। अब तुम्हें उर्दू नहीं आता, उर्दू सीखना है, हाँ उर्दू भी सीखना है, लेकिन अब उर्दू सीखने तक टाइम तो लगेगा, तो आप बहुत ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम लिखेंगे फ़ाइल, क्या है, फ़ाइल, हाँ वो करेंगे उस एक मर्द ने किया, उस एक मर्द ने, या उन दो मर्दों ने किया, उन सब किया। ये अरबी में लिखना है और उसका तर्जमा हिंदी में नहीं आता, तो आपको इंग्लिश, रोमन इंग्लिश में लिखना है, लेकिन लिखना जरूर है। और आज का कल का जो काम है वो लिखने का, वो बता, लिखना पड़ेगा तभी बनेगी बात, नहीं लिखोगे शुरू में तकलीफ होगी, टाइम नहीं मिलेगा लिखने के लिए, दिल बोलेगा नहीं लिखने के लिए, लेकिन कोशिश करनी है। ओके, हाँ जा, हाँ जा, हाजा से 5 वर्ड बना के लाना है। कितने, हाजा किताबुन, एक तो मैंने दे दिया, और उसका तर्जमा भी लिखना है। ये क्या है, ये किताब है, पूरा सेंटेंस और पूरा समझ में आना चाहिए। किताब क्यों है, हादल किताबु में 2 तनवीन क्यों नहीं आया, क्योंकि वो सिर्फ आपको बता रहे ये किताब, ऐसा नहीं बोल रहे ये किताब है, किताब भी हो सकता है, वो दूसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हादा किताबुन बोलना ये इस बात की अलामत है कि वाकईतन किताब है। समझ में आ रहा है, ये देखो, इन सबको याद करो और जितना हो सके उर्दू को याद करने की कोशिश करो। फाल की गर्दान 3 बार लिखने का है तर्जमे के साथ, और फाल की गर्दान याद करना है, फाल की गर्दान याद करना है। ये 3 बार लिखना है तर्जुमे के साथ। Thank you.